خانقاہوں میں جہاں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جاتا ہے، تفریق کو دور کیا جاتا ہے، ذات، برادری اور علاقائیت سے اوپر اٹھ کر ہر مسلک و مذہب کے افراد کو ایک پرچم تلے یکجا کیا جاتا ہے، وہیں خانقاہوں نے شعر و شاعری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نتیجتاً شعراء کی بڑی تعداد ماضی تا حال خانقاہوں اور بزرگان دین سے وابستہ ہے اور درس اخلاق و محبت دینے میں بسد خوشی مصروف ہے۔ حضرت خواجہ نبی رضا شاہ المعروف بدادہ میاں کے 115ویں عرس میں کچھ ایسی ہی کیفیت نظر آئی۔ پیش ہے مشاعرہ قومی یکجہتی کی رپورٹ۔ رفعت شہدہ صدیقی صاحب کے حضور پہنچا جائے۔ جناب سراج نبی نے کہا تھا کہ میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، اور میرے پاس مانگے کا اجالا بھی نہیں۔ یعنی فاروق جاذب جیسے اساتذہ یہ شعر کہیں تو بالکل صحیح ہے، جن کو کلام بانٹا بنایا سوارا وہ سب آج روشن ہے، اور یہ اپنا آرام کے کنارے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں سہمے سہمے رہتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد نصیر مقدس صدیقی نے یہ شعر کہا کہ کسی سے مانگ کے ہم روشنی نہیں لاتے، ہمارے گھر میں ہمارا چراغ رہتا ہے۔ یعنی انہوں نے الگ نکیل کی، انہوں نے کہا سنجے مصرا شوق ساحل عارفی اور جو قلیہ قلیہ بستی بستی ہمارے شاگرد بکھرے ہیں، یہ ایسی مشعل ہے جو روشن رہے گی اور اس سے دنیا کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ لیکن رفعت شہدہ صدیقی نہیں ٹھہرے، چونکہ شاعر تھے، انہوں نے یہ شعر کہا ضیاء اہل طریقت کا سلسلہ ہے علی، علی کے گھر سے ولی کا چراغ لگا۔ اس شعر کے خالق ہیں محترم رفعت شہدہ صدیقی، وہ آپ کا دعا اور آپ لوگ سامنے آگے جائیں۔ آدم صاحب آئیے۔ استاد محترم تشریف لائیے۔ جناب محمد فاروق جاذب لکھنوی، آپ ادھر بیٹھے۔ جیسے کہ میں کدے کی امامت ہمیں بھی تھی، ہم ڈگمگا گئے تو سبھی ڈگمگا گئے۔ واہ واہ واہ۔ پہلے دو شعر کہ شاہ رضا کے عرس میں آئے ہیں اہل دل، بے شک شاہ رضا کے عرس میں آئے ہیں اہل دل، نذرانے موتیوں کے لٹائے ہیں اہل دل، نذرانے موتیوں کے لٹائے ہیں اہل دل۔ اور یہ شعر کام کا ہے، اس میں خاص طور سے بطور خاص پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ دنیا مثال دیتی ہے جن کے خلوص کی، دنیا مثال دیتی ہے جن کے خلوص کی، دیکھا تمہیں تو یاد وہ آئے ہیں اہل دل، دیکھا تمہیں تو یاد وہ آئے ہیں اہل دل، دنیا مثال دیتی ہے جن کے خلوص کی، دیکھا تمہیں تو یاد وہ آئے ہیں اہل دل۔ حضرات گرامی ملاحظہ فرمائیں کہ کر کے احسان کسی پر جو جتا دیتے ہیں، کر کے احسان کسی پر جو جتا دیتے ہیں، اپنی نیکی کو وہ مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ کر کے احسان کسی پر جو جتا دیتے ہیں، اپنی نیکی کو وہ مٹی میں ملا دیتے ہیں، اور اہل ایمان پہ ہوتے ہیں جو یہ جور و ستم، اہل ایمان پہ ہوتے ہیں جو یہ جور و ستم، یہ ستم اور بھی ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، یہ ستم اور بھی ایمان کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور ہم وہ اسلام کے جگنو ہیں جو تاریکی میں، ہم وہ اسلام کے جگنو ہیں جو تاریکی میں ڈھونڈنے والوں کو منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے؟ ہم وہ اسلام کے جگنو ہیں جو تاریکی میں ڈھونڈنے والوں کو منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ اور حاجی صاحب یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ اختلافات مٹانا ہے چلو یوں کر لیں، اختلافات مٹانا ہے چلو یوں کر لیں، لو محبت کے چراغوں کی بڑھا دیتے ہیں، لو محبت کے چراغوں کی بڑھا دیتے ہیں۔ سماعت فرمائے حضرت، پھر پڑھ دیئے بھائی۔ اختلافات مٹانا ہے چلو یوں کر لے، لو محبت کے چراغوں کی، بہت شکریہ، لو محبت کے چراغوں کی بڑھا دیتے ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ طریقت کے حسین گلشن میں جتنے بھی گلے تر ہیں،
طریقت کے ہنسی گلشن میں جتنے بھی گلے تر ہیں بحمداللہ سارے پھول خوشبو کے پیمبر ہیں بحمداللہ سارے پھول خوشبو کے پیمبر ہیں اور چہک کر گلشن دادا میاں کی بلبلیں بولی چہک کر گلشن دادا میاں کی بلبلیں بولی میرے مخدوم تو علم تصوف کا سمندر میرے مخدوم تو علم تصوف کا سمندر ہے میرے مخدوم تو علم تصوف کا سمندر ہے چہک کر گلشن دادا میاں کی بلبلیں بولی میرے مخدوم تو علم تصوف کا سمندر ہے طریقت کے ہنسی گلشن میں جتنے بھی گلے تر ہیں بحمداللہ سارے پھول خوشبو کے پیمبر ہیں چہک کر گلشن دادا میاں کی بلبلیں بولی میرے مخدوم تو علم تصوف کا سمندر ہے میرے مخدوم تو علم تصوف کا سمندر ہے حضرات تنشیر اور پیش کرم راضہ فرما ہے کہ جو بھی شے ہو تین تیرا طاق ہونا چاہیے جو بھی شے ہو تین تیرا طاق ہونا چاہیے ختم ان رسموں کا میثاق ہونا چاہیے ختم ان رسموں کا اب میثاق ہونا چاہیے اور تم پہ جو حقدار کا حق ہے ادا اس کو کرو تم پہ جو حقدار کا حق ہے ادا اس کو کرو یہ حساب ایسا ہے جو بے باک ہونا چاہیے تم پہ جو حقدار کا حق ہے اسے پورا کرو یہ حساب ایسا ہے جو بے باک ہونا چاہیے یہ حساب ایسا ہے جو بے باک ہونا چاہیے اور وہ کسی مسلک کسی مذہب کا پیرو ہو مگر وہ کسی مسلک کسی مذہب کا پیرو ہو مگر آدمی کو پیکرے اخلاق ہونا چاہیے وہ کسی مسلک کسی مذہب کا پیرو ہو مگر آدمی کو پیکرے اخلاق ہونا چاہیے اور کوئی بھی طاقت جدا کرتے ہمیں ممکن نہ ہو کوئی بھی طاقت جدا کرتے ہمیں ممکن نہ ہو دو دلوں کا اس طرح الحاق ہونا چاہیے دو دلوں کا اس طرح الحاق ہونا چاہیے کوئی بھی طاقت جدا کر دے اور تم جو کہتے ہو یہاں جنات کا سایہ بھی ہے تم جو کہتے ہو یہاں جنات کا سایہ بھی ہے اس حویلی میں کہیں ایک طاق ہونا چاہیے اس حویلی میں کہیں تم جو کہتے ہو یہاں جنات کا بھی ہے گزر اس حویلی میں کہیں ایک طاق ہونا چاہیے اس حویلی میں کہیں ایک طاق ہونا چاہیے اور دل کو دنیا کی کسی شے سے کوئی رغبت نہ ہو دل کو دنیا کی کسی شے سے کوئی رغبت نہ ہو یاد حق میں ایسا استغراق ہونا چاہیے یاد حق میں ایسا استغراق ہونا چاہیے یاد حق میں دل کو دنیا کی کسی شے سے کوئی تعلق کوئی رغبت نہ ہو یاد حق میں ایسا استغراق ہونا چاہیے اور کچھ توجہ ہی نہیں گرچہ شناسائی نہیں کچھ توجہ ہی نہیں گرچہ شناسائی نہ ہو فیض انسان ابر کے مصداق ہونا چاہیے فیض انسان ابر کے مصداق ہونا چاہیے اور یہ شعر بھی بطور خاص کہ آج بھی سورج بلانے سے قریب آ جائے گا آج بھی سورج بلانے سے قریب آ جائے گا شمس تبریزی سا استحقاق ہونا چاہیے شمس تبریزی سا استحقاق ہونا چاہیے آج بھی سورج بلانے سے قریب آ جائے گا
शम्स तबरेज़ी सा इस्तेहकाक होना चाहिए, शम्स तबरेज़ी सा इस्तेहकाक होना चाहिए। और आज भी, और उसकी आप वक्त मुलाज़ा फरमाएं कि उसकी सारी नेकियां ज़ाइल हुई शहदा मियाँ, उसकी सारी नेकियां ज़ाइल हुई शहदा मियाँ। जिसने चाहा शोहरे आफाक होना चाहिए, जिसने चाहा आज भी उसकी सारी नेकियां ज़ाइल हुई शहदा मियाँ। जिसने चाहा शोहरे आफाक होना चाहिए, जिसने चाहा शोहरे आफाक होना चाहिए। हज़रात गिरामी चंद शेर और बुलंद फरमाएं कि मुझ पे अल्लाह ने बेशक बड़ा एहसान किया, मुझ पे अल्लाह ने बेशक बड़ा एहसान किया। मैं फकत खाक था, उसने मुझे इंसान किया। मैं फकत खाक था, उसने मुझे इंसान किया। मुझ पे अल्लाह ने बेशक बड़ा एहसान किया, मुझ पे अल्लाह ने बेशक बड़ा एहसान किया। मैं फकत खाक था, उसने मुझे इंसान किया। मैं फकत खाक था, मुझ पे अल्लाह ने बेशक बड़ा एहसान किया। मैं फकत खाक था, उसने मुझे इंसान किया। और एक मंजिल के लिए उसने बनाई राहें, एक मंजिल के लिए उसने बनाई राहें, एक मंजिल के लिए उसने बनाई राहें। और फिर राहनुमाई का भी सामान किया, और फिर राहनुमाई का भी सामान किया। और इस महफिल के हवाले से एक शेर कि इस कदर नूर फिशानी के निगाहें झुक जाएं, इस कदर नूर फिशानी के निगाहें झुक जाएं। आपके चेहरे ने आईने को हैरान किया, आपके चेहरे ने आईने को हैरान किया। इस कदर नूर फिशानी के निगाहें झुक जाएं। आपके चेहरे ने आईने को हैरान किया, आपके चेहरे ने आईने को हैरान किया। और ज़ौफ़िशा होने लगी सारी फ़ज़ाएं शहदा, ज़ौफ़िशा होने लगी सारी फ़ज़ाएं शहदा। मैंने जिस रोज़ से दिल में उसे मेहमान किया, मैंने जिस रोज़ से ज़ौफ़िशा होने लगी सारी फ़ज़ाएं शहदा। मैंने जिस रोज़ से दिल में उसे मेहमान किया, मैंने जिस रोज़ से दिल में उसे मेहमान किया। और दो तीन शेर ये देखिएगा क्या कहने, बिल्कुल ताज़ा शेर है कि नाम तो शौक का रश्के कमर रखा गया, नाम तो शौक का रश्के कमर रखा गया, पर उसे तारीकियों में उम्र भर रखा गया। नाम तो शौक का रश्के कमर रखा गया, पर उसे तारीकियों में उम्र भर रखा गया। रिजवान भाई जी था, रिजवान भाई चाय चल रही ना, आप खाइएगा। नाम तो शौक का रश्के कमर रखा गया, पर उसे तारीकियों में उम्र भर रखा गया। और इम्तिहान यह था कि किसकी रोशनी में है कशिश, इम्तिहान यह था कि किसकी रोशनी में है कशिश। एक तरफ अंगारा, एक जानिब गोहर रखा गया, एक तरफ अंगारा, एक जानिब गोहर रखा गया। और बात ये बचपन की है साहिल की गीली रेत से, बात ये बचपन की है साहिल की गीली रेत से। एक घिरौंदा सा बनाया, नाम घर रखा गया, एक घिरौंदा सा बनाया, नाम घर रखा गया। और फिर भी शायदा, फिर भी शायदा, फिर भी शायदा दिल ये मंसूबे बनाता ही रहा। उस्ताद पेश कर रहा हूं कि फिर भी शायदा दिल ये मंसूबे बनाता ही रहा।
जिंदगी का जबकि वक्फा मुख्तसर रखा गया, जिंदगी का जबकि वक्फा मुख्तसर रखा गया, नाम तो उस शौक का रस के कमर रखा गया, पर उसे तारीकियों में उम्र भर रखा गया। बहुत शुक्रिया नवाजा और तरन्नुम से आपने किसी की जान नहीं ली बल्कि अपनी जान निछावर कर दी तहत के अंदाज से। शेर अच्छे थे, लिहाजा आपको दाद मिली, काबिल मुबारकबाद। अब मैं चलता हूँ सीधे सीधे आदम सिद्दीकी साहब के हुजूर। बहुत अच्छे शायर हैं जनाब रफ़त फैज़ा सिद्दीकी साहब के। ये शागिर्द नहीं बल्कि छोटे भाई हैं, वो उनको सगे भाई से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। इसलिए अजीज़ रखते हैं कि वो शायर हैं। होता आमतौर पर ये कि घर में चराग के जले अंधेरा होता है। यहाँ सूरत हाल ये कि इधर रफ़त फैज़ा सिद्दीकी साहब ने दाव दिया, इधर सारे शागिर्द बटोर किए बैठे हैं। ये है जनाब आदम सिद्दीकी माइक पर। मतलब समझ में यहाँ इंसान की रोशन जिंदगी के फूल बटते हैं, यहाँ इंसान की रोशन जिंदगी के फूल बटते हैं। ये वो दर है जहाँ सबकी खुशी के फूल बटते हैं। कहना भैया क्या? यहाँ इंसान की रोशन जिंदगी के फूल बटते हैं। ये वो दर है जहाँ सबकी खुशी के फूल बटते हैं। और यहाँ पर तज़किरा होता है लफ्ज़ किबरियाई का, यहाँ पर तज़किरा होता है लफ्ज़ किबरियाई का, यहाँ पर रूह की पाकीज़गी के फूल बटते हैं। क्या अच्छे से पढ़ रहे हैं आदम साहब। यहाँ इंसान की रोशन जिंदगी के फूल बटते हैं, यहाँ इंसान की रोशन जिंदगी के फूल बटते हैं। ये वो दर है जहाँ सबकी खुशी के फूल बटते हैं। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं? क्या यहाँ पर तज़किरा होता है लफ्ज़ किबरियाई का, यहाँ पर तज़किरा होता है लफ्ज़ किबरियाई का, यहाँ पर रूह की पाकीज़गी के फूल बटते हैं। वाह वाह वाह, शेर अच्छे आजम भाई, आराम से पढ़िए आप। लेकिन मतलब समझ तो मैं किसको हमदर्दी ये बिल्कुल पाँच पाले यहाँ हो इस दिले बर्बाद से, किसको हमदर्दी यहाँ हो इस दिले बर्बाद से। जी, गूंगे बहरों की है बस्ती होगा क्या फरियाद से। ये इंतकामी शेर पढ़ा। किसको हमदर्दी यहाँ हो इस दिले बर्बाद से, गूंगे बहरों की है बस्ती होगा क्या फरियाद से। इधर मान आराम करें, गूंगे बहरों की बस्ती है, इसी तो हस्ती है। और नाम को उनके मिटाकर क्या मिलेगा आपको, नाम को उनके मिटाकर क्या मिलेगा आपको। इतनी नफरत आपको क्यों है मेरे अंदाज से। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं भाई। नाम को उनको मिटाकर क्या मिलेगा आपको, बहुत उम्दा भाई। नाम को उनके मिटाकर क्या मिलेगा आपको। वाह 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 वाह, नाम को उनके मिटाकर क्या मिलेगा क्या मिलेगा आपको। आपको। इतनी नफरत आपको क्यों है मेरे अंदाज से। नाम को उनके मिटाकर क्या मिलेगा आपको, इतनी नफरत आपको क्यों है मेरे अंदाज से। और जुल्म करने वालों का अंजाम होता है बुरा, जुल्म करने वालों का अंजाम होता है बुरा। ये सबक हमको मिला फिर औलाद सरदार से। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जुल्म करने वालों का अंजाम होता है बुरा, जुल्म करने वालों का अंजाम होता है बुरा। ये सबक हमको मिला फिर औलाद सरदार से। और शेख समझ सुना के याद करते हैं तुझे तस्बीह के दानों पे भी, याद करते हैं तुझे तस्बीह के दानों पे भी, हम कभी गाफिल नहीं होते हैं तेरी याद से। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। याद करते हैं तुझे तस्बीह के दानों पे भी, याद करते हैं तुझे तस्बीह के दानों पे भी, हम कभी गाफिल नहीं होते हैं तेरी याद से। आजम भाई बहुत अच्छे शेर पढ़ने आ रही है मुझे। याद करते हैं तुझे तस्बीह के दानों पे भी, हम कभी गाफिल नहीं होते हैं तेरी याद से। वाह, ये शेर फरमाए कि मुंसिफों के फैसले इंसाफ के काबिल नहीं, मुंसिफों के फैसले इंसाफ का काबिल नहीं। सच की खुशबू आ रही है आज ही दुनिया से। वाह, मुंसिफों के फैसले इंसाफ का काबिल नहीं। क्या कहने भाई, क्या कहने। मुंसिफों के फैसले इंसाफ का काबिल नहीं, सच की खुशबू आ रही है आज ही दुनिया से। और ये शेर भी साफ खास तौर पर समाज को है कि अपने बूढ़े बाप का वो कब सहारा बन सका, अपने बूढ़े बाप का वो कब सहारा बन सका। फायदा कुछ भी नहीं ऐसी जमा औलाद से। वाह वाह, अपने बूढ़े बाप का वो कब सहारा बन सका, अपने बूढ़े बाप का वो कब सहारा बन सका। फायदा कुछ भी नहीं ऐसी जमा औलाद से। वाह वाह,
और इसलिए जो कुछ भी था आदम ने हाजिर कर दिया, इसलिए जो कुछ भी था आदम ने हाजिर कर दिया। दिल को मिलता है सुकून मजलूम की इमदाद से, आजम भाई, इसलिए जो कुछ भी था आदम ने हाजिर कर दिया। वाह वाह वाह, दिल को मिलता है सुकून मजलूम की इमदाद से। बहुत वाह वाह वाह। शाहिदा भाई की दुआएं काम आ रही सब आपके। दो चर्चे किरदार जिसके पास अगर लाजवाब है, किरदार जिसके पास अगर लाजवाब है, दिल जीतने का उसमें हुनर लाजवाब है। वाह वाह वाह। देखिए साहिल भाई दाद नहीं दे रहे, शाहिदा से तुम भी मत बोलो। किरदार जिसके पास अगर लाजवाब है, दिल जीतने का उसमें हुनर लाजवाब है। क्या कहने, और जाती है सीधी अर्श बनी पर खुदा के पास, अच्छी शायरी भाई, वाह। जाती है सीधी अर्श बनी पर खुदा के पास, आंखों में बेकसों की असर लाजवाब है। वाह। जाती है सीधी अर्श बनी पर खुदा के पास, आंखों में बेकसों की असर लाजवाब है। वाह वाह वाह। और ये जिंदगी किसी की पनाहों में तो नहीं, ये जिंदगी किसी की पनाहों में तो नहीं, जैसा भी घर है उसका मगर लाजवाब है। वाह वाह। जिंदगी किसी की पनाहों में तो नहीं, जैसा भी घर है उसका मगर लाजवाब है। और वो मेहरबानियों की हो या बेरुखी की हो, वो मेहरबानियों की हो या बेरुखी की हो, उस शौक की हर एक नजर लाजवाब है। वाह। वो मेहरबानियों की हो या बेरुखी की हो, उस शौक की हर एक नजर लाजवाब है। क्या कहने, क्या और कहने। पैसा है जेब में तो कोई गम नहीं जनाब, पैसा है जेब में तो कोई गम नहीं जनाब, हर शाम लाजवाब का हर लाजवाब है। वाह। पैसा है जेब में तो कोई गम नहीं जवाब, हर शाम लाजवाब का हर लाजवाब है। वाह वाह वाह। और जब तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है हयात में, जब तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है हयात में, तुम हो तो जिंदगी का सफर लाजवाब है। वाह वाह वाह। क्या जब तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है हयात में, जब तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है हयात में, वाह। तुम हो तो जिंदगी का सफर लाजवाब है। बहुत उम्दा। जब तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है हयात में, वाह हो वाह तो वाह। जिंदगी का सफर लाजवाब है। बहुत उम्दा भैया तुम। और अमनो अमा है शहर में आदम हर एक तरफ, अमनो अमा है शहर में आदम हर एक तरफ, इस वास्ते हमारा नगर लाजवाब है। वाह 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 वाह। अमनो अमा है शहर में आदम हर एक तरफ, इस वास्ते हमारा नगर लाजवाब है। क्या कहने, क्या कहने। साहब ने नवाजा तो ये बयान बचा के रखिए, किसी गवैया के हाथ लग गई तो आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छी शायरी आपने की। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।